ethics in experiments. As we learned that experiments need to be designed carefully, keeping in mind the conduct of experiments ethical code. So we are concluding the discussion on ethics by presenting some of the early experiments and their criticism. Psychological research deals with a lot of important problems, and it has very potent methods. By potent, we mean those methods are very powerful. They can make a subject, a participant who is human or animal, go through change in behavior which can be long lasting. They can make someone behave in a certain way. And while even when you're studying, you have to take care that your experiment is conducted in a way that the benefits to science outweigh the distress or the damage caused to your subject. And sometimes, even if there is a big benefit to science, it should not be carried on because the cost of conducting and finding out is huge for the subjects and also for the people who read and study about that experiment. You will see what I mean by this, because psychology research has a lot of potential for misuse. Its potential for constructive application is also quite vast. So, ethical issues with some of the experiments. The Stanford Prison Experiment was conducted by Zimbardo and his colleagues in 1973. They were interested in finding out whether the brutality reported among guards in American prisons was due to the sadistic personalities of the guards, which means dispositional. यानी उनकी फितरत, उनकी डिस्पोजिशन ही ऐसी है कि वो लोगों को तकलीफ पहुंचा के किसी किस्म की मसरत महसूस करते हैं, अजियत पसंद है. या इसका ज़्यादा ताल्लुक किस चीज़ से है? इट हैड मोर टू डू विद द प्रिजन एनवायरनमेंट. सो इट वाज सिचुएशनल, कि उस ख़ास सिचुएशन में आके वो इस तरह के हो जाते हैं जबकि उनकी नेचर इस तरह की नहीं है. सो इन ऑर्डर टू स्टडी दिस, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो प्रिजनर्स could be disrespectful of law and guards could be aggressive. तो ये तो पर्सनैलिटी का एक इम्पैक्ट, या उनकी पर्सनैलिटी होगी ऐसी, उसकी वजह से ये हो रहा है. Alternately, prisoners and guards may behave in a hostile manner due to the rigid power structure of the social environment in prison. And this is very applicable in our jails and prisons as well. How the prisoners are made to feel about themselves as humans, as less than humans, is a commonly experienced feature for anyone who has experienced studying the jail environment and prisons in Pakistan. But this is America of 1973. And Zimbardo predicted the situation made people act the way they do rather than their disposition or their personality. यानी वो वहाँ आके उस हालात में ऐसे हो जाते हैं. सो उन्होंने जेल के जो बनाने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक बेसमेंट थी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की, उसको प्रिजन में कन्वर्ट किया. उन्होंने एडवर्टाइज़ किया कि हमें वॉलंटियर्स चाहिए. 75 ने अप्लाई किया, जिनको स्क्रीन करके कि उनकी कोई क्राइम, कोई ड्रग यूज़, कोई मेंटल इलनेस या पर्सनैलिटी प्रॉब्लम की तो कोई हिस्ट्री नहीं है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर उसमें से 24 सिलेक्ट हुए. दे वर परफेक्टली गुड नेचर्ड, हेल्दी, एवरेज, हैप्पी एंड वेल एडजस्टेड यंग मैन. इनको रैंडमली असाइन किया. कुछ को प्रिजनर बना दिया, कुछ को गार्ड बना दिया. गार्ड ने यूनिफॉर्म्स पहनी हुई थी, एनके पहनी होती थी, और जो प्रिजनर्स थे उन्होंने नंबर्स वाली यूनिफॉर्म, नंबर्स वाले कपड़े पहने होते थे जो जेल के ड्रेस होता है. उनको बुली किया जाता था, इंसल्ट की जाती थी, उन्हें बोरिंग टास्क देती थी और उनको उनके नंबर से बुलाया जाता था बजाय नाम के. बड़ी जल्दी बगावत हो गई.
जिसको उन्होंने बड़ा फोर्स से ख़त्म किया, जिस एक्सपेरिमेंट को 2 हफ्ते चलना था वो 6 दिन में ख़त्म हो गया, क्योंकि गार्ड्स एग्रेसिव हो रहे थे और प्रिजनर्स इमोशनली ब्रेक डाउन कर रहे थे। इसकी बहुत सी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशंस हैं कि इस तरह क्यों हो रहा था, बट माय पॉइंट इज़ द लास्ट वन, ऑल दोज हैव बीन डिस्कस्ड इन द सोर्सेज कि वो इंसानों की तरह ट्रीट नहीं हो रहे थे, डी इंडिविजुएशन थी, लर्नड हेल्पलेसनेस थी कि कुछ हम कर नहीं सकते, पावर थी गार्ड्स की, या एथिकल कंट्रोल नहीं था। एंड समथिंग दैट वी कैन से हियर, देयर वाज अ लैक ऑफ फियर ऑफ गॉड। इज दैट अ क्वेश्चन? इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं, और भी हार्म किया गया। बाद में उन्होंने डीब्रीफिंग की और उनको रिडक्शन और हार्म करने की भी कोशिश की। ये उसकी कुछ झलकियाँ हैं। आपको प्रिजनर और गार्ड्स नज़र आ रहे हैं और उनकी सज़ाएं भी। इसी तरह का और एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं, पर मोस्टली ऑन नॉन ह्यूमंस। इस स्टडी की अप्रूवल ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च ने की थी, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने, और यूनिवर्सिटी के कमेटी ऑफ ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन ने। इस स्टडी को अक्सर रिलेट किया जाता है जो बाद में एक अमेरिकन प्रिजन में इराक वॉर के बाद अब्यूज़ की गई। तो कहते हैं कि वो सोशल ऑर्डर्स थे, डायरेक्ट ऑर्डर्स थे या सोशल रूल थे। इसकी कंट्रीब्यूशन ये थी कि प्रिजन के जो रूल्स हैं और ट्रीटमेंट है वो इम्प्रूव हो गई। इसके बाद अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने एथिकल गाइडलाइंस बना दी, और इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड जो है यूएस, यूके और पाकिस्तान का, अब वो इसकी इजाज़त नहीं देता कि बग़ैर उनको दिखाए हुए और प्रोसीजर को अच्छी तरह से कमेंट किए हुए और उसके कंसिडरेशंस देखे हुए कि क्या हो सकता है, इसमें किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, अब किसी रिसर्च की इजाज़त नहीं मिलती। लर्नड हेल्पलेसनेस का एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा, जिसमें डॉग को शॉक लगाए जाते थे। और इन द लास्ट देयर इज़ दिस अमेरिकन रिसर्च पब्लिश्ड इन 1958, जिसमें उन्होंने कहा कि जिनको बहुत स्ट्रेस होता है उन्हें अल्सर्स हो जाते हैं। तो ये स्टडी जो है ये मंकीज़ को शॉक देके दिखाई गई कि उन्हें ये स्ट्रेस था कि उन्होंने दूसरे को शॉक से बचाना है, तो वो एग्जेक्टिव मंकीज़ कहलाए गए, क्योंकि उनके ऊपर डिसीजन मेकिंग की जिम्मेदारी थी और अल्सर का एग्जेक्टिव्स के साथ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया गया इस स्टडी से। ये एथिकल ग्राउंड्स पे भी काफ़ी क्रिटिसाइज हुई है और मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी क्रिटिसाइज हुई है। इन द एंड वी वुड लाइक टू से कि पहले से बहुत ज़्यादा अब लोग अपने एथिकल प्रॉब्लम्स, इश्यूज और डिलेमास को रिपोर्ट करने लग गए हैं।